So now today in the previous lecture we have gone through the detectors. Okay. So today we are going to discuss about the manual system of the sample injection in HPLC. Okay. So in the manual sample injections in HPLC, this is one of the very important and the critical steps of the analysis. Okay. In this what we use a syringe. Okay. And by the use of the syringe, what we do, we add or inject a precise amount of the sample. We add or inject a precise amount of sample into the HPLC system through injection port. You have that injection port. Okay. Before that it will come now. Okay. And thereafter the manual injection is often preferred when the high level of precision and control is needed in the sample introduction process. Okay. So what happens in the manual sample injection in HPLC? So in manual sample injection in HPLC, which is one of the critical steps, you use the syringe to inject a precision amount of the sample into the HPLC system through injection port. Thereafter, this manual injection is often preferred when the high level of precision and control is needed in the sample introduction process. Okay, so what is the use of this manual injection? When we want a high level of precision and the control, we would prefer to go for manual injection for sample introduction प्रोसेस. सैंपल को सिस्टम में डालना है तब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है एक, जब अपने को प्रिसीजन ज्यादा अच्छे से चाहिए और कंट्रोल चाहिए. एग्री? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, can I assume? Can I assume that you have got it? Hello, please unmute yourself. Okay. Thereafter, manual sample injection process with the nomenclature. Now you can see the sample loop. This is the valve. This is the syringe needle. Okay. Are you getting what I am saying? Very simple. So this is the thing. This is a sample loop. The blue part is the sample loop. And this the red part is the syringe needle, and thereafter the syringe needle is added into the valve. The syringe needle is added into the valve. Agree? Now the steps in the manual injection. Okay, so before the steps for the manual injection includes, first we have to prepare the sample. ठीक है ना? सो क्या ऐसे ही बन जाएंगे सैंपल? नो, यू हैव टू प्रिपेयर द सैंपल इन द सुटेबल सॉल्वेंट, and thereafter you have to fill the syringe with the sample solution. Thereafter what you have to do, you have to insert the syringe into the sample injection port. Insert करना पड़ेगा आपको उसको. Okay. Thereafter you have to turn the level, you have to turn the valve of the load position to fill the sample loop. Agree? तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्व जो लोड पोजीशन का है उसको फिल करना पड़ेगा सैंपल लूप में. एग्री? उसके बाद में आप क्या करेंगे, जब लोड कर देंगे तो फिर उसके बाद में टर्न करेंगे वॉल्व टू इंजेक्शन पोजीशन. इंजेक्शन पोजीशन पे लेकर आ जाएंगे उसको. ठीक है ना? टू इंट्रोड्यूस द सैंपल इनटू द एचपीएलसी सिस्टम. फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे सिरिंज को आफ्टर इंजेक्शन इज कंप्लीट. एग्री? देखो स्टेप्स देखो फिर से. प्रिपेयर करेंगे सैंपल को सुटेबल सॉल्वेंट में, फिर फिल करेंगे सिरिंज को सैंपल सिस्टम में, फिर इंसर्ट करेंगे सिरिंज को सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में, टर्न करेंगे वॉल्व को टू लोड द पोजीशन टू फिल द सैंपल लूप. उसके बाद में क्या करेंगे, लोडिंग करने के बाद में टर्न करेंगे वॉल्व को इंजेक्ट पोजीशन पे. वहां लिखे रहेगा लोड करे इंजेक्ट करे. समझ में आ रहा है ना आपको? एग्री? तो लोड करते वक्त में ही आपको उसको ऐड करना है. तो फिर टर्न करेंगे वॉल्व को, फिर लोडिंग के बाद में आप क्या करेंगे, इंजेक्ट पोजीशन पे लाएंगे उसको. ठीक है ना? फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस करेंगे सैंपल को एचपीएलसी सिस्टम में. देयर आफ्टर यू विल रिमूव द सिरिंज आफ्टर इंजेक्शन इज कंप्लीट. एग्री? हैव यू गॉट इट बेटा? हैव यू गॉट इट? हेलो? हेलो? Yes, sir. ओके. नाउ दिस इज अ सिंपल स्टेप. नाउ वी विल सी अदर द कॉम्प्लेक्स स्टेप्स ऑल्सो.
वेट अ मिनट. This is visible to all of you. Yes. सर हाँ. हेलो सर हाँ. 49 40 शेयरिंग सेम डिवाइस We can discuss it later also. Okay. This is visible. Yes, sir. Okay. So now, one important question that can be asked in your exam is the use of the degasser, okay, and column heater in HPLC. Okay, so degasser is basically the eluent used for LC analysis. Okay, and these may contains gases such as the oxygen and that are non-visible to our eyes. The degasser, the eluent uses what? LC analysis. Okay, and they contain what? They contain gases such as the oxygen, which is non-volatile in to our eyes. Okay, so what happens when the gas is present in the eluent? Okay, so उसको आप क्या करते हो? नॉइज करके डिटेक्ट करते हो और उसके बाद में एक अनस्टेबल बेसलाइन आएगी. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? फिर जो डी गैसर क्या करता है, ये यूज करता है स्पेशल पॉलीमर मेम्ब्रेन को. डी गैसर क्या करता है? स्पेशल पॉलीमर मेम्ब्रेन को यूज करता है, ट्यूबिंग को यूज करता है ताकि उसमें से गैसेस पूरी निकल जाए. डी गैसर नाम ही बता रहा है. ठीक है ना. फिर इसके बाद में न्यूमरस जो बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं सरफेस पे पॉलीमर ट्यूब के, वो क्या करते हैं? एयर को अलाउ करते हैं कि वो उसमें से पास हो, while preventing any liquid to go through the pore. कोई लिक्विड वहां से पास हो थ्रू द पोर, वो उसको अलाउ नहीं करते. सो दिस इज द रोल ऑफ द डी गैसर इन एचपीएलसी एनालिसिस. ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा. ठीक है ना, पर आपको पता रहना चाहिए. देखो फिर से सुनो.
व्हाट इज द रोल ऑफ द डी गैसर इन एचपीएलसी एनालिसिस? तो ये जो एलिवेंट रहता है एलसी एनालिसिस में, इसमें बहुत सारी गैसेस होती है। एग्जांपल है ऑक्सीजन, जो नॉन विजिबल होती है आइस के लिए। फिर जो गैस होती है प्रेजेंट जो एलिवेंट में रहती है ना, उसको आप डिटेक्ट करते हो कैसे? इन द फॉर्म ऑफ नॉइज। नॉइज समझता है ना, आपको डिस्टर्बेंस आता है जो आपका पीक में है ना। उसके बाद में दैट कॉजेज अनस्टेबल बेसलाइन, अनस्टेबल बेसलाइन आती है। फिर जो डी गैसेस होते हैं ना, ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये स्पेशल पॉलीमर मेम्ब्रेन ट्यूबिंग के रहते हैं और ये रिमूव करते हैं गैसेस को। फिर जो न्यूमरस वेरी स्मॉल पोर्स रहेंगे सरफेस पे पॉलीमर के ट्यूब के, वो अलाउ करेंगे एयर को कि वो उसमें से पास हो और कोई लिक्विड उसमें ना जाए थ्रू द पोर। सो दैट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ द डी गैसिंग। एग्री? समझ में आया? Yes, sir. हाँ, Yeah. उसके बाद में फिर कॉलम हीटर। तो कॉलम हीटर में आप बेसिकली क्या करते हो, ये जो एलसी सेपरेशन एनालिसिस होती है ना, इसमें कॉलम टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको रिपीटेबल रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, शुगर्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स है। बेटर रेजोल्यूशन आपको ऑब्टेन होंगे हायर टेम्परेचर पे, कितना, 50 to 80 डिग्री सेल्सियस पे। और कॉलम्स को जनरली आप कहाँ रखते हो, इनसाइड द कॉलम ओवन रखते हो, कॉलम ओवन के अंदर रखते हो, कॉलम हीटर बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है ना। तो कॉलम्स को कहाँ रखते हो अपन, इनसाइड द कॉलम ओवन, कॉलम हीटर बोलते हैं उसको अपन। देखो फिर से सुनो, कॉलम हीटर में क्या करते हैं, जो एलसी सेपरेशन होता है वो बेसिकली कॉलम टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड होता है। तो अगर अपने को रिपीटेबल रिजल्ट्स चाहिए तो आप लोग को आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन को मेंटेन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है, शुगर से, ऑर्गेनिक एसिड से, बेटर रेजोल्यूशन के लिए इनको हायर टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, 50 डिग्रीज to 80 डिग्री सेल्सियस। और कॉलम्स जो भी रहते हैं बेसिकली उनको इनसाइड रखते हैं कॉलम ओवन पे, कॉलम हीटर बोलते हैं उसको। एग्री? यहां तक समझा? Yes. हाँ, उसके बाद में जो टाइप्स ऑफ एचपीएलसी में देखे थे अपन ने, तो कॉलम पैकिंग जो मटेरियल रहते हैं वो एग्जांपल कौन से है, सिलिका। सिलिका पोलर नेचर का होता है। मोबाइल फेस कैसी होती है, नॉन पोलर होती है। और किस लिए यूज होते हैं, वाटर सेंसिटिव कंपाउंड्स के लिए, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के लिए, ठीक है ना, आइसोमर्स के लिए, सिस और ट्रांस आइसोमर्स के लिए, कायरल कंपाउंड्स के लिए। आरपीएचपीएलसी में क्या होता है कि जो कॉलम पैकिंग रहेंगी वो नॉन पोलर रहेंगी, C18। तो मोबाइल फेज कैसी रहेंगी, यहाँ पे वाटर मिसिबल सॉल्वेंट यूज करेंगे, पोलर, नॉन पोलर, आयोनाइजेबल और आयोनिक सैंपल्स के साथ में। आयन एक्सचेंज कैसे होगा, कॉलम पैकिंग मटेरियल में क्या रहता है, आयोनिक गैसेस रिंग ग्रुप्स रहेंगे, मोबाइल फेज रहेंगे बफर सॉल्यूशंस में, ठीक है ना। और वो सेपरेट करेंगे एरोज बाय कैटायंस, ठीक है ना, बाय सेपरेटेड बाय एनायंस एंड द कैटायंस। एग्री? हेलो? Yes, sir. हाँ, लिखते पे काम नहीं बना है, अभी बहुत सारी चीजें है। उसके बाद में और कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ, बेसलाइन स्टेबलाइजेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल फेस को रिजर्वायर में रखना पड़ेगा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में बाय मींस ऑफ द ट्यूब। फिर इंस्ट्रूमेंट को स्विच ऑन करना पड़ेगा, फिर मोबाइल फेस को फ्लो करेंगे आप थ्रू आउट द सिस्टम, ठीक है ना। फिर जो फिल्ट्रेशन होगा, डीगैसिंग होंगी, वो अचीव होंगी ऑन द बेस लाइन, स्टेबलाइजेशन इज डन, ठीक है ना। अब ये प्रैक्टिकल है पैरासीटामॉल का, तो वो अपन बाद में देखेंगे, इसका इतना कुछ वो नहीं है। ये जो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो ये मैंने आपको ने बोला कि ये इसमें दी हुई है, वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। रिटेंशन टाइम क्या होता है, जो डिफरेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, किसके बीच में भाई, पॉइंट ऑफ इंजेक्शन और अपीयरेंस ऑफ पीक मैक्सिमा, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिटेंशन टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। और ये टाइम कितना होता है, 50% होता है, ताकि जो कॉलम इल्यूट हो जाए, ठीक है ना, कंपोनेंट इल्यूट हो जाए कॉलम से। और उसको मेजर्ड करते हैं मिनट्स और सेकेंड्स में। रिटेंशन वॉल्यूम क्या होता है, रिटेंशन वॉल्यूम में वॉल्यूम किसका रहता है, कैरियर गैस का रहता है, और वो इल्यूट होता है 50% ऑफ द कंपाउंड के साथ में फ्रॉम द कॉलम, ठीक है ना। रिटेंशन वॉल्यूम की अपनी डेफिनेशन है कि वो प्रोडक्ट होता है रिटेंशन टाइम का और फ्लो रेट का।
ये सब अपने पढ़े हैं, फिर भी ये बोला एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। सेपरेशन फैक्टर में क्या होता है? सेपरेशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट रहेगा, ठीक है ना। तो दो कंपोनेंट्स को आप कैसे सेपरेट करते हो, तो उसको डिपेंड करते डिनोट करते हैं, एनोट करते हैं एस से। एस इज इक्वल इन टू के ए डिवाइड बाय के बी। तो के बी यानी क्या, के ए यानी क्या होता है, टी बी माइनस टी जीरो और टी ए माइनस टी जीरो, रिटेंशन टाइम से ये। और के क्या है, कॉन्स्टेंट से। रेजोल्यूशन क्या होता है, मेजर ऑफ एक्सटेंट होता है सेपरेशन का दोनों कंपोनेंट्स का। और फिर इसके बाद में बेस लाइन ऑफ द सेपरेशन इज अचीव्ड बाय R1 और RS। रेजोल्यूशन इज इक्वल टू ट्वाइस RT1 माइनस RT2, रिटेंशन टाइम्स होते हैं, ठीक है ना, डिवाइड बाय विड्थ W1 प्लस W2। ये पूछते हैं HTTP, हाँ बार बार पूछते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इमेजिनरी प्लेट होती है, हाइपोथेटिकल प्लेट होती है, यूनिट होती है कॉलम की, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉल्यूट का बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। एग्री? हेलो? Yes, sir. हाँ ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद में ये क्या डिस्क्राइब करता है, कॉलम एफिशिएंसी को सेपरेशन में, ठीक है ना। दिख रहा है तो और थोड़ा ये करो, बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। ये देखो, थेरोटिकल प्लेट को अपन क्या करते हैं, हाइट, और ये डिफाइन करता है एफिशिएंसी ऑफ सेपरेशन को। HTTP क्या होता है, लेस होता है तो कॉलम कैसा होता है, एफिशिएंट ज्यादा होता है। HTTP अगर मोर रहा तो कॉलम क्या हो जाता है, लेस एफिशिएंट हो जाता है। MCQ में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। HTTP अगर लेस रहा तो कॉलम कैसा हो जाता है, ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। HTTP अगर मोर रहा तो कॉलम कैसा हो जाता है, लेस एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है ना। HTTP लेस रहा, कॉलम एफिशिएंसी बढ़ जाएंगी। HTTP मोर रहा, कॉलम एफिशिएंसी क्या हो जाएंगी, लेस कम हो एफिशिएंट हो जाएगी। जाएगा। हाँ, हाइट इक्विवेलेंट टू थेरोटिकल प्लेट बोलते हैं इसको। सो HTTP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइड बाय द नंबर ऑफ थेरोटिकल प्लेट। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, व्हाट इज गिव द एक्सप्रेशन, ये दिख रहा है ना बेटा, दिख रहा है कि और बड़ा करूं? अब ठीक है? हेलो? अब Yes, ठीक है? sir. हाँ। तो एफिशिएंसी यानी क्या होता है, तो एफिशिएंसी किसको एक्सप्रेस करते हैं, थेरोटिकल प्लेट्स में करते हैं। एन इज इक्वल टू 16 RT स्क्वायर अपॉन W स्क्वायर, ठीक है ना। एन क्या होता है, नंबर ऑफ थेरोटिकल प्लेट्स होते हैं। RT क्या होता है, रिटेंशन टाइम होता है। W क्या होता है, पीक विड्थ होता है बेस पे। RT और W क्या होते हैं, मेजर्ड इन कॉमन यूनिट्स। यूनिट्स कौन से सेंटीमीटर रहेगा, MM रहेगा, मिनट्स रहेगा, सेकंड्स रहेगा। नोट क्या रहेगा, नंबर ऑफ थेरोटिकल प्लेट्स कैसे रहेंगे, हाई रहेंगे, कॉलम इज सेड टू बी हाईली एफिशिएंट। इन HPLC हाई वैल्यू कितनी रहती है, 40,000 टू 70,000 पर मीटर, ये रिकमेंडेड वैल्यू रहती है, ध्यान रखना, MCQ में पूछा जा सकता है। एफिशिएंसी क्या होती है, कॉलम एफिशिएंसी ऑफ द थेरोटिकल प्लेट कैसे देते हैं, एन इज इक्वल टू 16 RT स्क्वायर अपॉन W स्क्वायर। एन क्या होता है, नंबर ऑफ थेरोटिकल प्लेट्स, RT रिटेंशन टाइम, W पीक विड्थ एट द बेस। RT एंड W आर मेजर्ड इन कॉमन यूनिट, सेंटीमीटर रहेगा, MM रहेगा, मिनट्स रहेगा और सेकेंड्स रहेगा। HPLC नंबर ऑफ थेरोटिकल प्लेट्स कैसी रहेंगी, हाई रहेंगी तो कॉलम को अपन हाईली एफिशिएंट बोलेंगे HPLC में। और हायर वैल्यू कितनी रहती है, ये भी MCQ में पूछा जा सकता है, 40,000 टू 70,000, ठीक है ना, पर मीटर है, ये रिकमेंडेड है। डिफाइन असिमेट्री फैक्टर, असिमेट्री फैक्टर भी पूछा जा सकता है। तो ये नहीं किया, अगर अगर आपको क्रोमेटोग्राफिक पीक जो भी आपको ऑब्टेन होता है उसको सिमेट्रिकल कहते हैं, आप अगर अबाउट द सेंटर, तो उसने कुछ कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। वो कंडीशन में सबसे पहले क्या है कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ना, गॉसियन ग्राफ, उसको फॉलो करना चाहिए। बट इन प्रैक्टिस बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो पीक सिमेट्रिकल नहीं होते, उसमें टेलिंग होती है, फ्रंटिंग होती है, ठीक है ना। अब ये टेलिंग और फ्रंटिंग क्या होती है, फ्रंटिंग यानी क्या होता है, सैचुरेशन हो जाएगा आपका स्टेशनरी फेस पे, और उसको आप कैसे अवॉइड करोगे, कम सैंपल लो, ठीक है ना। और टेलिंग में क्या करोगे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो जाएगा साइड्स का,
और एलिमिनेट कर पाओगे उसको बाय सपोर्ट प्री ट्रीटमेंट. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Fronting is nothing but the saturation of the stationary phase, and that can be avoided by how it can be avoided? It can be avoided by the utilization of the less quantity of the sample. Now what is tailing? Tailing both it is due to the more active absorption sites, okay, and that can be eliminated by support treatment. Asymmetric factor कितना होना चाहिए? Should be around 0.95 to 1.05. और उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? असिमेट्रिक फैक्टर इज इक्वल इन टू बी बाय ए. बी क्या होता है? कैलकुलेटेड बाय 5% और 10% ऑफ द पीक विड्थ. एग्री? Yes, हेलो? sir. हाँ, समझा? Yes, sir. हाँ, उसके बाद में रेंज क्या होती है टेलिंग फैक्टर की? ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू 2. ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. लेस देन रहेगा या फिर इक्वल टू 2 रहेगा. नॉर्मल प्रेशर कंडीशन मोस्ट ऑफ द एनालिटिकल वर्क डन में एचपीएलसी में कितना रहता है? 6000 psi पर स्क्वायर इंच. ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर इसके बाद में व्हाट इज द केस व्हेन द टेम्परेचर सेंसिटिव डिटेक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड? ग्रेडियंट इल्यूशन मेथड. कौन सी मेथड? ग्रेडियंट इल्यूशन. फिर इसके अंदर नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनालिटिकल कॉलम. एनालिटिकल कॉलम में क्या होता है? स्टेनलेस स्टील होता है और फ्यूज से लिखा होता है. पार्टिकल साइज रेंज प्री कॉलम के लिए, गार्ड कॉलम, सपोर्ट कॉलम के लिए कितनी है? 30 to 50 माइक्रोन. ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं. एग्री? हेलो? Yes, sir. हम्म. अब देखो, पंप्स बोल रहे थे ना अपन, ठीक है ना, न्यूमेटिक पंप, सिरिंज पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, हाइड्रोलिक पंप्स. ठीक है ना. तो ये देखो, नॉन रेसिप्रोकेटिंग और कांस्टेंट प्रेशर पंप किसको बोलते हैं? ठीक है ना. इसको अपन गैस प्रेशर पे चलाते हैं. ठीक है ना. जो प्रेशर रहता है गैस लाइन का, वो लार्ज एरिया पिस्टन को ड्राइव करता है. ठीक है ना. और ड्राइव करके पिस्टन को स्मॉल एरिया पे लेकर आता है. ठीक है ना. फिर जो गैस प्रेशर होता है वो फेस करते हैं पिस्टन पे, हायर प्रेशर लिक्विड लगाते हैं इस पे. ठीक है ना. और प्रेशर को क्या रखते हैं? कॉन्स्टेंटली डिलीवर करते हैं सिस्टम को. ठीक है ना. इसका मतलब जो न्यूमेटिक पंप्स रहते हैं ना, वो सोर्स ऑफ प्रेशराइज्ड गैस रहते हैं और वो ड्राइव करते हैं लिक्विड मोबाइल फेस को आइदर इनटू द कॉलम डायरेक्टली, और या फिर मोबाइल फेस से कॉलम पे डायरेक्टली जाएगा ये होल्डिंग कॉइल पे, या फिर स्टेनलेस स्टील सिलेंडर पे. कैसे जाएगा? बाय मींस ऑफ फ्लेक्सिबल और मूविंग सेपरेटर. ठीक है ना. और उसके बाद इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सब्सिक्वेंट डिसोल्यूशन, अगर डिसोल्यूशन से बचाना है उसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गैस को अपर पार्ट ऑफ द लिक्विड में रखना पड़ेगा. ठीक है ना. ये जो पंप्स होते हैं ये थोड़े सस्ते होते हैं, यूजुअली सॉल्वेंट कंज्यूमिंग होते हैं, ये इनका डिसएडवांटेज है. ठीक है ना. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बट सब्सिक्वेंट जो सॉल्वेंट कंज्यूमिंग होने के बाद में इनमें सॉल्वेंट चेंज कैसा होता है? रैपिड होता है. ठीक है ना. और जो मैक्सिमम प्रेशर इनमें अवेलेबल होता है वो कितना होता है? लेस देन 10 मिली पैस्कल्स. ठीक है ना. फिर उसके बाद में सेफ्टी रीजंस के लिए. अब प्रॉब्लम क्या होता है न्यूमेटिक पंप्स के साथ में? न्यूमेटिक पंप का दूसरा नाम प्रॉब्लम. न्यूमेटिक पंप्स का यूजुअली क्या होता है? जो सेंटर रहता है वो फेल्यूर होता है हायर प्रेशर पे. ठीक है ना. तो आपको केयर लेना पड़ेगा कि जो आप हायर प्रेशर पे सील्स कर रहे हो, केयर कर रहे हो कि वो इजीली सॉल्वेंट के साथ में कंपैटिबल रहे. ठीक है ना, मिक्सचर में. और सॉल्वेंट शुड बी वेल फिल्टर्ड, ताकि वो कोई एब्रेसिव मटेरियल को रिमूव कर जाए वहां से. ठीक है ना. इट इज रैदर टेडियस मेथड है, चेंज करते हैं सॉल्वेंट्स को विद द लार्ज न्यूमेटिक पंप्स बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम्स. ठीक है ना. एग्री कर रहे हो? जिसको आप फ्लश करते हो. देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपके सामने पूरा का पूरा. ये देखो, ये 2 राउंड सील वाला है, ये सीरिंज लोडेड एडजस्टेबल पिस्टन लगा हुआ है, डायफ्राम. ठीक है ना. ऑयल रिजर्व है, मोटर्ड पिस्टन है. ठीक है ना. सॉल्वेंट इनलेट है यहाँ से. ठीक है ना. देखो अच्छे से सुनो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नॉन रेसिप्रोकेटिंग और कांस्टेंट प्रेशर पंप के बारे में बात कर रहे हैं. और ये गैस कैरियर का काम करते हैं, गैस प्रेशर को वो ये कैरी करते हैं. और ये जो न्यूमेटिक पंप्स होते हैं ये गैस प्रेशर पे ही चलते हैं. ठीक है ना. फिर जो प्रेशर रहता है गैस लाइन का, वो लार्ज एरिया जो पिस्टन रहता है वो ड्राइव करता है इसको स्मॉल एरिया में. फिर इसके बाद में जो गैस फेसेस रहते हैं पिस्टन के, वो हायर प्रेशर लिक्विड पे जाते हैं, कांस्टेंट प्रेशर को डिलीवर करते हैं सिस्टम पे. इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपके न्यूमेटिक पंप्स रहेंगे वो सोर्स ऑफ प्रेशराइज गैस का काम करेंगे, ड्राइव करेंगे लिक्विड को सिस्टम में.
ठीक है ना? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अरे समझ रहे हो ना? हेलो, 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 आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. हाँ, तो जो न्यूमेटिक पंप्स है वो सोर्स का काम करेंगे, कॉलम में डायरेक्टली जाएंगे, होल्डिंग करेंगे कॉइल की, स्टेनलेस स्टील सिलेंडर की। कैसे? बाय मींस ऑफ ए फ्लेक्सिबल सेपरेटर, ताकि सब्सिक्वेंट जो डिसोल्यूशन रहेगा गैस का वो अपर हैंड ऑफ द और या अपर पार्ट ऑफ द लिक्विड में हो। उसके बाद में जो पंप्स रहते हैं ये सस्ते होते हैं, यूजुअली सब्सिक्वेंट सॉल्वेंट कंज्यूमिंग होते हैं, सॉल्वेंट चेंज इसमें रैपिड नहीं होता है। मैक्सिमम प्रेशर अवेलेबल कितना होता है? 10 मिली पैस्कल्स का, फॉर सेफ्टी रीजंस। ठीक है ना? अभी प्रॉब्लम क्या होता है न्यूमेटिक पंप्स के साथ में? यूजुअली जो सेंटर रहता है अराउंड द फेल्यूर ऑफ द हायर प्रेशर सील्स, ठीक है ना, तो आपको केयर लेना पड़ता है कि सॉल्वेंट्स कंपैटिबल हो जाए मटेरियल के साथ में, इन ऑर्डर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द सील्स। फिर इसके बाद में सॉल्वेंट्स उनके वेल फिल्टर्ड होना चाहिए ताकि वो एब्रेसिव मटेरियल को रिमूव कर पाए। ठीक है ना? उसके बाद में ये टेडियस मेथड होती है। ठीक है ना? आर यू गेटिंग टू? ताकि आप चेंज कर पाए सॉल्वेंट को with the large pneumatic pumps because of the volumes to be flushed. Agree? अरे समझ में आया क्या? हेलो, समझ में आया आपको? Yes, sir. हाँ, अभी वो जो सैम्पलिंग मेथड बोल रहे थे ना इंजेक्टर में, वो देख लेते हैं अपन। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा मैं टर्न करता हूँ। इसकी वैसे भी जरूरत नहीं उतनी अपने को, ये इंजेक्टर सिस्टम की बहुत जरूरत थी। ठीक है ना? तो इसमें दो टाइप के इंजेक्टर सिस्टम्स होते हैं बेसिकली एचपीएलसी में, सैम्पलिंग वाला और इंजेक्शन मोड वाला। ठीक है ना? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो जनरल डिजाइन में जो सेप्टम रहेगा इंजेक्शन पोर्ट का, वो सीरिंज को आप यूज करोगे, इंजेक्ट करोगे सैंपल को इनर्ट सेप्टम पे डायरेक्टली इनटू द मोबाइल फेस। ठीक है ना? यूजुअली जो डिवाइस रहती है ये क्या करता है, प्रेशर मोबाइल फेस के अप्लाई किया हुआ जो रहता है उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना? और एक्सेप्ट उसमें एक इंजेक्शन, उसमें आपको जब तक आप ऐड नहीं करेंगे तब तक ये पूरी तरीके से उसमें वर्केबल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? अब इसका एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, मैनुअल का लीचिंग इफेक्ट होता है इसमें। ठीक है ना? लीचिंग इफेक्ट किसका होता है? मोबाइल फेस का होता है। ठीक है ना? जब वो कांटेक्ट में आते हैं सेप्टम से तो उसके वजह से क्या होता है, गोस्ट पीक्स बनते हैं। गोस्ट पीक समझता है ना? आर्टिफिशियल बेकार पीक्स, नॉइजी पीक्स, उनको गोस्ट पीक बोलते हैं, ध्यान रखना। देखो अच्छे से सुनो, सेप्टम इंजेक्शन पोर्ट में सिरिंज को यूज करते हैं, वो इंजेक्ट करता है सैंपल को डायरेक्टली इनटू द इनर्ट सेप्टम। ठीक है ना? मोबाइल फेज में। और यूजुअली एक डिवाइस है जो प्रिवेंट करता है प्रेशर ऑफ मोबाइल फेस को, ताकि वो अप्लाई हो जाए सेप्टम पे एक्सेप्ट इंजेक्शन इज मेड। ठीक है ना? वन ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द सेप्टम इंजेक्टर क्या होता है, लीचिंग इफेक्ट होती है। लीचिंग इफेक्ट किस में ऑब्जर्व होता है बेटा? ये मोबाइल फेज में होता है, जब वो कांटेक्ट में आता है सेप्टम के। उसके वजह से क्या जनरेट होते हैं, लीचिंग इफेक्ट से गोस्ट पिक्स बनते हैं। गोस्ट पिक्स यानी क्या होते हैं, जो नेचुरल पिक्स नहीं होते, आर्टिफिशियल पिक्स होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, गोस्ट पिक्स बोलते हैं। ठीक है ना? फिर जो मैक्सिमम प्रेशर होता है सीरिंज पे, उसको आप यूज कर सकते हो ऑनलाइन इंजेक्शन के साथ में, और लिमिट कर सकते हो आइदर लीकेज, लीकेज को रोक सकते हो किसके बीच में, पिस्टन और सीरींज बैरल के बीच में। ठीक है ना? पिस्टन और सीरींज बैरल के बीच में। ये देखो ये सैम्पलिंग मेथड है, ये देखो यहाँ पे दिया है मोबाइल फेज कॉलम के लिए सैंपल को कैसे इन करोगे, सैंपल को आउट कर, एडजस्टेबल सैंपल लूप है ये सैंपल मेथड है। उसके बाद में क्या करोगे, मैक्सिमम प्रेशर लगाओगे सीरिंज पे, और ऑनलाइन इंजेक्शन उसको लिमिट करोगे आइदर बाय लीकेज यूजिंग द पिस्टन एंड द सीरिंज बैरल, और बाय द फोर्स ऑफ द सेपरेटर ऑपरेटर कैन एक्सर्ट ऑन दिस फिंगर। और उसके बाद में आप क्या करोगे, काउंटरएक्ट करोगे अपलिफ्ट फोर्स को प्रेशराइज्ड पे पिस्टन पे, फिर उसको पुश करोगे डाउन, पिस्टन को क्या करोगे, डाउन पुश करोगे। ठीक है ना? प्रैक्टिकली
जो हायर प्रेशर सिरिंजेस है उनको आपको यूज करना है, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पे इंजेक्शन माइक्रोलाइन क्वांटिटीज में लोगे, ठीक है ना। कितना लोगे प्रेशर लगा के, 10 to 20 मेगा पैस्कल का आप इसमें प्रेशर लगाओगे। उसके बाद में जो लार्जर अमाउंट में जो रहेगा वो इंक्रीज पिस्टन डायमीटर रहेगा और मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होगा। देखो अच्छे से सुनो, यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर जिस पे सीरिंज को यूज करोगे ऑनलाइन इंजेक्शन के साथ में, वो उसका यूज कैसा है, लिमिटेड है, ठीक है ना। और इट इज लिमिटेड आइदर बाय व्हाट, तो लीकेज से। लीकेज किसके बीच में होता है, पिस्टन और सिरिंज बैरल के बीच में होता है, पिस्टन और सिरिंज बैरल के बीच में। ये क्या है बताऊं, क्रॉस सेक्शनल एरियाज है, इसलिए आपको थोड़ा तकलीफ हो रही होंगी पहचानने में इसको, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या है कि ये फोर्स करेंगे ऑपरेटर को कि वो एक्सर्ट करे और फिंगर पे और काउंट्रैक्ट करे, अपलिफ्ट करे फोर्स को प्रेशराइज लिक्विड के पिस्टन पे और पुश करे उसको डाउन। प्रैक्टिकली कमर्शियली हाईली प्रेशर सिरिंजेस को यूज करते हैं आप, ठीक है ना। और वो इंजेक्शन एक इंजेक्ट करते हैं माइक्रोलीटर क्वांटिटीज में, कितने प्रेशर पे, 10 से 20 मेगा पैस्कल्स के, ठीक है ना। जो ऑपरेटर के ऊपर में डिपेंड रहेगा, ऑपरेटर यानी कौन, केमिस्ट, हमारे जैसा आपके जैसा। फिर जो लार्जर सैंपल्स रहेंगे उनको इंक्रीज्ड पिस्टन डायमीटर के साथ में आप डालेंगे, मैक्सिमम प्रेशर डिक्रीज होगा इसमें। अब ये इंजेक्टर पोर्ट रहता है ना, इंजेक्शन वॉल्यूम लेता है, वॉल्व को आप रोटेट करोगे मोबाइल फेस से, ट्यूबिंग करोगे, सैंपल ट्यूबिंग करोगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करोगे, सैंपल को इंजेक्ट करोगे सैंपल लाइन में, वॉल्व को रोटेट करोगे, मोबाइल फेजेस वॉश करेंगे सैंपल को मेन लाइन में। फिर इसके बाद में जो वॉल्व रहेगा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएगा। फिर जो सैंपल मिक्सचर्स रहेंगे वो पास होंगे कॉलम में, सेपरेशन उसके बाद में होगा। फिर इसके बाद में एफ्लुएंट को आप डिटेक्ट करोगे, क्रोमेटोग्राम रिकॉर्ड करोगे, क्वांटिटेटिव वर्क ये आपका फिक्स्ड वॉल्यूम लूप इंजेक्टर के साथ में होगा। ऐसा एग्री बेटा, समझा गया? फिर से बताता हूं, इंजेक्शन पोर्ट में क्या करते हैं, इंजेक्शन वॉल्व रहता है, ये वॉल्व क्या होता है, रोटेट होता है मोबाइल फेस ट्यूबिंग पे, सैंपल ट्यूबिंग के साथ में। फिर जो सैंपल रहता है उसको आप इंजेक्ट करोगे सैंपल लाइन में, वॉल्व को रोटेट करोगे, मोबाइल फेस वॉश होगा सैंपल से मेन वो लाइन पे। उसके बाद में जो वॉल्व रहेगा उसको रिटर्न करोगे ओरिजिनल पोजीशन पे और सैंपल मिक्सचर पास करेंगे कॉलम में, सेपरेशन आपको अचीव हो जाएगा। फिर एफ्लुएंट डिटेक्ट होगा, क्रोमेटोग्राम को आप रिकॉर्ड करोगे, क्वांटिटेटिव वर्क है तो फिक्स्ड वॉल्यूम लूप इंजेक्टर आपके लिए रिकमेंडेड है। ध्यान में आया? एमसीक्यू बनता है क्वांटिटेटिव वर्क के लिए कौन सा वाला इंजेक्टर बेस्ट है, फिक्स्ड वॉल्यूम लूप इंजेक्टर। एग्री? हेलो हेलो, सुन रहे हैं बेटा? हेलो, सुन रहे हैं? इज इट ओके विथ ऑल ऑफ यू? हेलो, प्लीज लेट मी नो। जोर से बोलिए बेटा। जोर से बोलिए बेटा, प्लीज स्पीक अप। नहीं? फिर से बताऊं? अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। नहीं समझा। क्या बोले शिफा? हाँ शिफा बोलो। सर समझा। समझा ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद में करंटली मोस्ट वाइडली यूज जो कमर्शियली यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं, माइक्रो वॉल्यूम सैम्पलिंग, ये जो वॉल्व्स होते हैं उनको यूज करते हैं अपन, ये आजकल करंटली यूज में है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं रिप्रोड्यूसिबली प्रेशराइज्ड कॉलम को सिग्निफिकेंट इंटरप्शन ऑफ द मोबाइल फेस के बगैर, ठीक है ना। फिर जो सैंपल होता है वो फर्स्ट लोड होता है एक्सटर्नल लूप में, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वॉल्व पे, फिर वो इंट्रोड्यूस होता है मोबाइल फेस पे और रोटेट होता है वॉल्व, ठीक है ना। ऑटोमेटिक सैंपल इंजेक्टर यूजुअली, ये क्रॉस सेक्शनल एरियाज है मैंने आपको बताया था,
ठीक है ना, अवेलेबल कमर्शियली। इनका नाम क्या है, माइक्रो वॉल्यूम सैम्पलिंग वॉल्व बोलते हैं। और ये इनेबल करते हैं सैंपल को ताकि वो इंट्रोड्यूस हो जाए रिप्रोड्यूसेबली इनटू प्रेशराइज्ड कॉलम विदाउट सिग्निफिकेंट इंटरप्शन ऑफ द मोबाइल फेज। ठीक है ना, सैंपल को फर्स्ट आप लोड करोगे एक्सटर्नल लूप पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, सो नॉट टेम्परेचर, प्रेशर पे, फिर वॉल्व में, फिर उसके बाद में इंट्रोड्यूस करने के बाद मोबाइल फेज को रोटेट करोगे। ठीक है ना, फिर ऑटोमेटिक सैंपल इंजेक्टर्स इसमें अवेलेबल हो जाएंगे कमर्शियली। ठीक है ना, इसमें नोट करने वाली चीजें क्या है वॉल्व इंजेक्टर्स में, कि वॉल्व इंजेक्टर्स कैसे होते हैं, सीरिंज इंजेक्टर से बेटर होते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल वॉल जो रहता है बैंड ब्रॉडनिंग के लिए, ये बहुत अच्छे होते हैं, लार्जर देन दैट ऑफ द सीरीज इंजेक्टर्स। ठीक है ना, अब इसमें एक फैक्ट होता है कि जो कन्वीनियंस ऑफ द यूज ऑफ द वॉल्व होता है एज वेल एज ऑफ द ऑटोमेशन कैपेबिलिटी रहती है, वो इसको यूजफुल डिवाइस बना देता है। ठीक है ना, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान रखना। कंट्रीब्यूशन सैंपल वॉल्व्स का बीक ब्रॉडनिंग के लिए काफी बड़ा होता है सीरिंज इंजेक्टर्स में। पर इसमें एक फैक्ट होता है कि जो कन्वीनियंस होता है यूज करने का वॉल्व्स को, एज वेल as well as their automated capability make them a very useful device in HPLC. जनरल सीरिंज इंजेक्शंस मोर ट्रबलसम होते हैं HPLC में, और जो वॉल्व इंजेक्शंस होते हैं ये प्रेफर्ड होते हैं। क्यों, इसका रीजन है, देखो फिर ये रीजन पूछा जा सकता है MCQ में या फिर वन लाइन क्वेश्चन में, कि हायर प्रिसीजन किस में ऑब्जर्व होता है, सीरिंज इंजेक्शंस में। ठीक है ना, एग्री, यहां तक समझा आपको? ओके, यस, हैव यू गॉट इट? Yes, have you got it? Have you got it? हाँ बेटा, समझा बेटा आपको? हेलो, सबको? Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, अपन इतने पे पॉज करते हैं। ठीक है।